السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی و انتظامی دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ نے بے پناہ نقصان پہنچایا۔ دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پاکستان کو کم از کم 3 سال کا نیا IMF پروگرام درکار ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF کی شرائط ملک کے لیے بہتر ہیں اور یہ آخری پروگرام اسی وقت ہوگا جب ہم اسٹرکچرل پالیسیز اپنائیں۔ ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ آج تک بلوچستان کو جو حقوق ملے وہ پارلیمنٹ نے دیے۔ بیڈ گورننس کو ختم کر کے گڈ گورننس کو لانا چاہتے ہیں۔ چین سے آئی خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم سے محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے چینی ٹیم کو حملے کے بارے میں اب تک ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کیا۔ چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاک چین تعاون کو سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ پنجاب گرمی کی لپیٹ میں، آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بلوچستان میں طوفانی بارش سے 5 افراد جاں بحق، کانکن پھنس گئے۔ ہرنائی میں کئی مقامات پر پنجاب کو ملانے والی شاہراہ سیلابی ریلوں میں بہہ گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کو بہتر بنانے کی راہ میں سیاسی و انتظامی دباؤ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کو بہتر بنانے کی راہ میں سیاسی و انتظامی دباؤ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انسداد اسمگلنگ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ معیشت کی بہتری کے لیے مسلسل اقدامات کر رہے ہیں۔ گزشتہ 24 روز میں معیشت کے حوالے سے مختلف اجلاس کیے۔ چیلنجز کو سمجھنا ہے تاکہ معیشت کو سنبھالا جا سکے۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے سیاسی افراتفری کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ وفاق، صوبے اور ادارے سب مل کر یکسو ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ کو صوبوں میں سیکیورٹی کا جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ چیلنجز پر وہی قومیں قابو پاتی ہیں جو ہمت نہیں ہارتی۔ یقین ہے پاکستانی قوم عزت و ہمت سے مسائل کو حل کرے گی۔ ملک کی ترقی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ معیشت کو بہتر اور مضبوط کرنے کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی و انتظامی دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ شہباز شریف نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ پاکستان کو غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ نے بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اتحادی حکومت نے 2022 میں 2.5 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کی اجازت دی تھی۔ جو چینی بیچ کر ہم ڈالر کما سکتے تھے وہ افغانستان اسمگل ہونے سے نقصان ہوا۔ بجلی چوری سے سالانہ 400 سے 500 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ شعبہ پیٹرولیم میں بھی گیس چوری سے نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال محصولات کا 9 کھرب کا تخمینہ ہے۔ 2700 ارب روپے کے محصولات سے متعلق کیسز عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ نگراں حکومت میں شعبہ توانائی میں 58 ارب روپے کی چوری ریکور ہوئی۔ نگراں حکومت میں انسداد اسمگلنگ سے متعلق ٹھوس اقدامات کیے گئے۔ آرمی چیف اور صوبوں کے تعاون سے انسداد اسمگلنگ میں مدد ملی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کو کم از کم 3 سال کا نیا IMF پروگرام درکار ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کو کم از کم 3 سال کا نیا IMF پروگرام درکار ہے۔ پاکستانی وفد IMF اور ورلڈ بینک سے مذاکرات کے لیے 14 اور 15 اپریل کو واشنگٹن جائے گا، جس میں نئے پروگرام کے خد و خال پر بات کریں گے، جبکہ تفصیلی مذاکرات پاکستان آ کر ہوں گے۔ کراچی میں اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ نگراں حکومت کے منظم اقدامات کی بدولت ممکن ہوا۔
निगरां दौर हुकूमत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। वजीर खजाना ने कहा कि निजकारी प्लान के तहत खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी की जाएगी। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट को आउटसोर्स करना एडवांस स्टेज में है। पूरी कोशिश है कि PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल की जाए। उन्होंने कहा कि IMF की शराइत मुल्क के लिए बेहतर है और यह आखिरी प्रोग्राम उसी वक्त होगा जब हम स्ट्रक्चरल पॉलिसीज अपनाएं। अब हमने अपनी तवज्जो किस पर मरकूज करनी है ये हम जानते हैं कि क्या और क्यों करना है। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि सर्कुलर डेट को कम करना है और बरामदात में इजाफा करना है। इस वक्त हमें काम करना है। अगर अमल दरामद में कोई रुकावट होगी तो फिर देखेंगे। ज़राअत में 5% की गिरोथ कम नहीं, लेकिन ज़राअत में अभी मजीद गिरोथ होगी और ज़राई शोबे की गिरोथ का IMF से ताल्लुक नहीं। वजीर खजाना का कहना था कि महंगाई की शरह कम हुई है और ये सारी कामयाबियाँ शहबाज शरीफ के गुज़िश्ता दौर का SBA मुआहदा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि जिन लोगों ने हुकूमत की रिट को चैलेंज किया हुआ है और तशद्दुद का रास्ता अपनाया हुआ है, जिन्होंने मासूम शहरियों के कत्ल गारत का रास्ता चुना है, उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि जिन लोगों ने हुकूमत की रट को चैलेंज किया हुआ है और तशद्दुद का रास्ता अपनाया हुआ है, जिन्होंने मासूम शहरियों के कत्ल गारत का रास्ता चुना है, उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के आवाम के जानो माल की हिफाजत और इज्जत की हिफाजत करना हम पर आईनी तौर पर जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है। अपोजिशन के बगैर डेमोक्रेसी मुकम्मल नहीं। हम इत्तेहादी इकट्ठे बैठेंगे और मशावरत के साथ फैसले करेंगे। सरफराज बुगटी का कहना था कि हम चाहते हैं कि डायलॉग से मसला हल हो, लेकिन इससे नहीं होता। हमें आइन ने ये जिम्मेदारी दी है कि हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने असासाजात का तहफ़्फ़ुज़ करें। सरफराज बुगटी ने कहा कि आज तक बलूचिस्तान को जो हुकूक मिले वो पार्लियामेंट ने दिए। बैड गवर्नेंस को ख़त्म करके गुड गवर्नेंस लाना चाहते हैं। मैंने विफाक की बलूचिस्तान के लिए संजीदगी देखी है। हम बलूचिस्तान के मसाइल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि तुर्बत और गवादर में दहशतगर्दों का हमला हुआ। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जहाँ हमारी कामयाबी की कहानियाँ हैं उनका बार बार जिक्र करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि बलूचिस्तान कोई 1 इंच भी ऐसा नहीं जहाँ रियासत की रट नहीं। हम बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करेंगे। बलूचिस्तान में कोई फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। बलूचिस्तान में FC, पुलिस और दीगर इदारे मुकाबला करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि हमने स्मगलिंग का खात्मा करना है। बलूचिस्तान में रोजगार के मौके बहुत कम हैं, लेकिन स्मगलिंग की इजाज़त नहीं दे सकते। हमें इस वक्त गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज और दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। हमसे गलती हो सकती है, लेकिन बददियानती नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने में शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आने वाली खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात की है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने में शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आने वाली खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात की है, जबकि दूसरी जानिब चीन के सिफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि पाक चीन ताउन को सबताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीनी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की समाजी इक्तिसादी तरक्की की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़म है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। दोनों ममालिक के अवाम को मजीद फवायद पहुँचाने के लिए पुरअज़म है। कबल अज़ी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी सिफारत खाने जाकर चीन के सफ़ीर और चीन से आई तहकीकाती टीम को शांगला हमले की तहकीकात में पेशरफ्त से मुतालिक आगाह किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। इस दौरान मुलाकात में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी सफ़ीर से भी मुलाकात की और कहा कि शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहने का इम्कान है, जबकि शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बायस ज़िला दक्की में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाम बहक हो गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचोली जारी रहने का इम्कान है, जबकि शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बायस ज़िला दक्की में
मकान की छत गिरने से 5 अफराद जा बहक हो गए। दक्की में ही कोयले की कान में 5 कारकुन फंस गए हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बारिश के बायस सैलाबी रेला दक्की के इलाके नासिराबाद में अफ्तार से कबल कोयले की कान में दाखिल हुआ, जिसके बायस 5 कारकुन फंस गए। हुक्काम का कहना है कि सैलाबी पानी 60 फीट तक कान के अंदर जा चुका है और फंसे हुए कारकुनों से राब्ता भी मुनक़ता है। लीवी ज़राए के मुताबिक जिला दक्की में मुसलसल 10 घंटे तक मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल है। कोड़क टॉप में कई मकामात पर शाहराह सैलाबी रेले से मुतासिर है। धानासर में लैंड स्लाइडिंग के बायस कौमी शाहराह बंद है। हरनाई में कई मकामात पर पंजाब को मिलाने वाली शाहराह सैलाबी लहरों में बह गई। पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। महकमा मौसमियात की जानिब से आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब वक्ती तौर पर गर्मी की लपेट में है, जिसके बाद आज और कल बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दरी असना कुदरती आफात से निमटने वाले सूबाई इदारे PDMA ने अपने अलर्ट में बताया कि बारिश के साथ बास मकामात पर ज़ालाबारी का भी इम्कान है। मौसम के हवाले से की गई पेशगोई के मुताबिक आज और कल मरी, किलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, खुशाब, सरगोधा, मियांवाली, डेरा गाजी खान, भक्कर, लिया, साहिवाल और बहावलपुर में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निम्रा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।